welcome we bring to all the dignitaries, guests, professors, and students present in the audience today. My name is Dhriti Gaur. And I, Roma Pandey, thank you all for joining us for the first national seminar on green biotechnology and its impact on Indian economy. We feel deeply honored to greet all our esteemed guests who have taken time out of their busy schedule to be with us this morning. I now request Ms. Alka Madan, Vice President, Corporate Relations, Bennett University, for the welcome address of today. A very warm welcome to all of you. I welcome you on behalf of Bennett University on this very special day for us to be here on this beautiful campus. Thank you so much to be here again. And those who are not familiar with Bennett University, so let me just give you a few lines about Bennett. Otherwise, it needs an entire day to explain that what do we do, whom we are. So very briefly, I'll tell you, Bennett University, popularly known as BU, is a Times of India initiative. And we produce undergraduate, postgraduate, and doctoral programs. So these are the programs which we offer under 4 schools, which is engineering, management, law, and media. What is different with us is that right from the day one, there is a lot of focus on research and innovation. What it brings is the societal impact in mind. And along with the research orientation, there is a lot of industry orientation also. We try and bring industry to the classroom. And because the application of such research and learning in the classroom is very important. And blended with this, BU aims that its students become the learners for a lifetime. And they become useful citizens of this nation, serving the country, serving the society, serving the community. So in this room, we have the top researchers, the industry veterans, the academicians, and the students, and we are all debating on a topic which is very close to our heart and very close to India's mission also, green biotechnology. And today, we have the champion, the genius, the authority on Ayurveda with us, who not only redefined Ayurveda, but also brought this to every household, making it a part of our daily life. So the force behind Patanjali, we have Acharya Balkrishnan ji amongst us. It's our great honor, sir. Acharya ji, thank you, sir, for coming. We also have Mr. Narendra Bhushan, who is an IS and who is also the CEO of Greater Noida Industrial Authority. When I went and met him in his office, I was awestruck by his simplicity and dedication. And he is all dedicated to make Greater Noida a greater place to live. We also have with us Mr. Kishore Desai, who is the officer on special duty. And let me tell you, I feel very proud and I feel very great when I see a strategic, an industry veteran who is a firm, who makes the part of our think tank of this nation, that is the Niti Aayog, to be with us. So we are in good hands, sir, and thank you for coming. So welcome once again to this beautiful day. I hope we have some good deliberations and a lot of takeaways from this conference. I wish everybody a good day ahead, and thank you once again for coming. A warm welcome to you once again. Thank you so much. I would now request Dr. Rajendra Singh Chauhan, Dean, Research and Consultancy, Bennett University, for the opening address. Thank you, Roma. Green biotech basically involves interventions, which is like R&D interventions, which develop products, processes, or services which are environment friendly, extremely important for a country like ours in today's scenario, but also create social and economic value for the society.
So that's the reason that green biotech has been differentiated from the biotech. Well, green is a very buzzword also these days. We are hearing green economy, green jobs, green buildings, green construction, green products. We had green revolution, which really created a lot of benefits for the country, food security in the early 60s. That led to certain problems because that involved intensive agriculture, involving heavy use of chemical fertilizers, pesticides, herbicides. And then the adverse effects of those pesticides went to the extent that the Malwa region of Punjab today is called as the cancer belt of India. So it's very, very challenging problem before us. Now, what is the solution for it? That's where the role of green biotech comes into play, so that we can develop products which are environment friendly for the benefit of the ecosystem as a whole. And that involves development of biopesticides, biofertilizers, herbal medicine, herbal products, cosmetics. So virtually, if you look at today, most of the daily use consumer products are petroleum based. So the idea or the purpose of green biotech is to replace those petroleum based products with our bio-based products. And in that direction, nobody is better than our keynote speaker, Acharya Shri Balkrishan Ji, and the Patanjali Ayurveda. Now, the green biotech, it doesn't only create a lot of these bioproducts which are environment friendly, but also, as I said, that it involves a value chain, and that value chain has opportunities for job creation. So let's say starting from the production, harvesting, pre-processing of the raw material, that creates a lot of job avenues for our rural farming communities, even to the extent of the high altitudes of the Himalayas. I once again thank you all, and I wish and I hope that the deliberations will bring out certain gaps and opportunities for all of us, right, starting from the BTech first year student or even up to the level of the Vice Chancellors. Thank you again, once again. Thanks a lot. I now invite Dr. Suneet Tuli, the Dean of School of Engineering and Applied Sciences at Bennett University. He has been a part of numerous research projects and holds a rich experience of working as a Dean in R&D, Healthcare Associate Dean, and also Professor at IIT Delhi. Thank you, sir. On a more serious note, there are 4 pillars which are required if you want to progress as a society. 4. And we have everyone represented over here. First of all, you need good policies, Niti. So Niti Ayog, if you do not have good policies, your intentions do not translate over here. So the think tank it's not only the Niti Ayog, but also the university, which is supposed to create the thinkers, knowledge creators. Uske baad mein we need good people down the line to implement over here, administration. Narendra ji is here, Dr. Aslam is an old friend who has been contributing. We need people and good intentions how to make processes over here. Actually, processes. The third part is industry. And we are very well represented over here in industries. And lastly, of course, is the university system over here. So the university system in India is supposed to be both a disseminator of knowledge as well as creator. And this is something we forget. Universities are also supposed to create knowledge and do this in consonance with all the 3 pillars. So the new age universities जो आ रही हैं, उनका मूल मंत्र यही है कि जब तक आप लोग सब चारों मिल के काम नहीं करोगे, सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती. I mean, the rest is all of us. The problem is that, at least I'm perhaps the most grey-haired over here, India has seen too many revolutions missed. Right? There was a time जब TV का revolution आया, computers आए, electronics, हम लोग ने सब मिस कर दिया क्योंकि हम लोग सब मिल के काम नहीं कर सके. Right? So इतने सालों बाद हुआ क्या? We are all users of technology. We do not create technology. Right? We in any area we take. So biotechnology is one area, which I hope, heartfelt, that we can still catch on. इस सिस्टम के अंदर में आप अपनी पहली कॉन्फ्रेंस कर रहे हो. उद्देश्य, थैंक यू राजेंद्र फॉर टेलिंग द एम, और उद्देश्य इट्स वेरी ग्रेट और करना चाहिए. सो मैं यही कामना करता हूँ कि सब लोग मिल के ये सब उद्देश्य को करेंगे. थैंक यू सो मच एंड वेलकम. Thank you, sir. Continuing with the same spirit,
Let's all build connections with people we think can inspire us. This will provide us with an environment to apply and expand more than what we just learn in classrooms and laboratories. With this heartfelt revelation, I would like to invite the first keynote speaker who needs no introduction, Acharya Balkrishna ji. He is a renowned pioneer in the field of Ayurvedic science, a multifaceted genius and an Ayurveda scholar who is constantly engaged in the service of mankind. आज प्रातःकाल के इस सुंदर सुहावने मौसम में जहाँ मैं अपने सामने देख रहा हूँ हमारे भारत के भविष्य, इस विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राओं को, जिनसे इस देश का निर्माण होने वाला है, मैं धन्यवाद करूँगा इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब को, बहन अलका जी और हमारे डॉक्टर साहब चौहान जी, और हमारे मध्य में हैं भाई नरेंद्र जी हैं, किशोर जी हैं और बाकी तमाम अद्भुत व्यक्तित्व यहाँ पर हैं। उन सबको, क्योंकि मेरा बहुत कम होता है कहीं पर जाना, सेवा के कार्यों में इतना लगना होता है तो ही कुछ सर्जन हो पाता है। और मेरे सीधा सा बहुत स्पष्ट मेरी सोच है, उसको आप कहीं पर भी उसको फिट कर सकते हैं। संसार में किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति यदि वो दूसरे से आगे निकलना चाहता है तो शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। आपको क्या करना होगा? दूसरे से ज्यादा परिश्रम करना होगा, परंतु उस परिश्रम में सावधानी ये चाहिए कि बुद्धिपूर्वक परिश्रम आपको करना होगा। परिश्रम तो जो सड़क के किनारे पर पत्थरों को तोड़ता है वो भी आपसे और हमसे कहीं ज्यादा परिश्रम करता है। वहाँ शरीर का अंश ज्यादा प्रयोग हो रहा है, मस्तिष्क का कम प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से आज हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। ये पहला आपका प्रोग्राम है। यह वस्तुतः समय रहते हुए समय को समझने की एक विधा है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। और सभी लोग सुनो लो, प्रकृति की रक्षा प्रकृति के लिए हमको नहीं करनी है। हम नेचर को बचा करके या ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की बातें करके हम इस नेचर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। यह हमको समझना होगा। यदि हमको अपनी जिंदगी चाहिए, जिंदगी प्यारी है, तो नेचर को बचाना होगा। यानी नेचर के लिए, प्रकृति के लिए प्रकृति को नहीं बचाना है। मानवता का जीवन, मनुष्यता का जीवन, यह मानव बचा रहे इस धरा पर, इसके लिए उसको बचाने की जरूरत है। क्योंकि आदमी तो स्वार्थी है, हर किसी को अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। तो मैं मानता हूं कि यदि आपको जीवन चाहिए तो फिर उस स्वार्थ से आपको जोड़ना पड़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि अब हम लोगों ने बहुत देख लिया, सहजता को व्यक्त करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान रख लेना, वो सदैव वर्तमान होता है, परंतु जहां कृत्रिमता होती है उसके के लिए मौके की तलाश की आवश्यकता होती है। तो हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति मौके की तलाश नहीं करती है, वह सहजता से जीने में विश्वास करती है। और आज यदि मैं कहूं, ग्लोबलाइजेशन की बात होती है हर चीज में, परंतु हमारे ऋषियों ने तो लाखों वर्ष पहले वसुधैव कुटुंबकम कह करके पूरी दुनिया को अपने आप में समाहित कर लिया था। आज इस देश में कई तरह की विवाद, संवाद और गैप्स पैदा हो रहे हैं।
हमारी संस्कृति में, या मैं यूं कहूं कि जिस संस्कृत को मैंने पढ़ा है उस संस्कृत में कहीं पर भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि पर्टिकुलर इसके भलाई के लिए ये काम हो। कहीं पर भी हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होती हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमने नहीं कहा इस कास्ट वाले आगे बढ़ें, ये जाति वाले आगे बढ़ें, ये धर्म वाले आगे बढ़ें, ये रिलीजन वाले आगे बढ़ें, ये ऐसा हो। वो तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सोच ही नहीं है, विचार ही नहीं है, ये दिया ही नहीं जाता है। पैदा होते ही हमको ये सिखा दिया जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे उठते ही बोलो कि सारे सुखी हों, इसमें मनुष्य ही नहीं, हम तो प्राणियों मात्र के लिए बात करते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग भी, वो भी सुखी रहे, वो भी दुखी ना हो। क्योंकि आप बात कर रहे हो बायोडाइवर्सिटी के, ग्रीन के, वो सब कीट पतंग की सबकी आवश्यकता है इस धरती पर। कि भगवान ने सांप की रचना करी तो सांप ठीक है आपको काट ले तो किसी की मृत्यु हो सकती है, पर उसके बिना इस धरती में बहुत सारी जो इसकी जो व्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। तो हर चीज की एक जगह पर आवश्यकता है। तो यह एक तरह से इस पूरी दुनिया को, पूरे संसार को हम किस तरह से सुंदर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और हमारी संस्कृति एक बात और कहती है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से मैं जोड़ करके बात को कह रहा हूं कि हमारी संस्कृति एक बात और कहती है कि यदि हमारा पड़ोसी दुखी है तो तुम सुखी कभी नहीं हो सकते, क्यों? दुखी पड़ोसी हमेशा तुमको दुखी रखेगा। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारा पड़ोसी दुखी होने पर तुमको सुखी चैन से नहीं रहने देता है, जब तुम जहां चलोगे, उठोगे, बैठोगे, हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, और मिट्टी शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, तो तुम कैसे ठीक रह सकते हो? कभी ठीक नहीं रह सकते। तो जो हमारे इर्द गिर्द जिससे हमारा जीवन आश्रित है, उस जीवन को ठीक रखने के लिए हमको यह प्रयास करना पड़ेगा कि हम उस चीज को ठीक रखें। यही है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। इसको यदि गहराई में समझें। अब मैं उपाय बताता हूं, और यहां पर हम लोगों ने, क्योंकि हमारे नीति के भाई बैठे हैं, हमारे ओएसडी नीति आयोग और नीति योजनाएं, प्लानिंग, तो इसमें हमको समझने के लिए, गहराई में जानने के लिए हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या इंपैक्ट होगा इसका। आप मानिए आज भी इस हिंदुस्तान के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं, पर हमने उस संभावना को खो दिया है। पर अभी हम पा सकते हैं। वो पा सकते हैं तो सिर्फ ग्रीन जो आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। कुछ बिंदु पे मैं रखूंगा जितना मेरे पास आप लोगों ने कहा है सुनाने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है केमिकल की बात पे मैं कहूं, हिंदुस्तान में ठीक है हमारा प्रोडक्शन इतना नहीं था, हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो पेट भरने की समस्या थी। क्यों हम लोग केमिकल की तरफ बढ़े, क्यों हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की तरफ हम गए? एक तो बाकी जो कारण है इस धरती को, उर्वरकता को खत्म करने के, दूसरे कारण पर मुख्य कारण जहां से गड़बड़ हुई, ठीक है पेट भरने की समस्या थी, तब प्रोडक्शन कम था, अभी ज्यादा भी हो गया, ये भी सही बात है। पर उस समस्या का समाधान हम कहीं नेचर में ढूंढते, प्राकृतिक रूप से ढूंढते, शायद आज हमको बैठ करके इतनी चिंतन की या इतनी बातों की आवश्यकता ना पड़ती। पहले लोग मरते थे, कुपोषण से मरते थे, पानी वगैरह की अशुद्धि से मरते थे, पर यदि आप आंकड़ा ढूंढेंगे तो कैंसर से, किडनी फेलियर से और लीवर की इस तरह की खतरनाक स्थिति से मरने वालों की संख्या शायद पहले नहीं थी। मैं बच्चों की ही बात कर रहा हूँ, बड़ों की तो मैं बाद में बात करूंगा। जब उनकी आंखों में आंसू होते हैं ना, हमारे भी आंखों से आंसू निकलता है। ये पीड़ा यदि आप अपने हृदय में बैठा लोगे ना, जो भी इस नेचर को बचाने के दायित्व हैं, चाहे वह आप ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के हो, दूसरे टेक्नोलॉजी के हो, कहीं भी हो, पर हमारे मन में, हमारे हृदय में एक भाव बैठ जाएगा, इस नेचर को बचाने की मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। बस हम जिम्मेदारी का एहसास करें और एहसास मान करके यदि हम प्रवृत्त हो जाए तो ये नेचर बचेगी। इस प्रकृति को बचाना हमारा दायित्व है। तो केमिकल को हमने डाल दिया,
इंसेक्टिसाइड को खेतों में डाल दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि खेतों में डली हुई जो केमिकल है मात्र 3-4% ही पौधों में जाता है, बाकी सब या तो हवा में उड़ता है या तो वह जमीन में चला जाता है या जमीन के माध्यम से पानी में चला जाता है। बाद में जब तुम पानी पियोगे, पानी तो कहीं से आएगा, उस पानी में चला जाएगा, या हवा लोगे तो हवा में भी चला जाएगा। दुनिया की जो बहुत सारी प्रतिबंधित, अभी भी भाई साहब आप बैठे, मैं आपको इसलिए आज शुरू से कही कि 30 से 35 ऐसे केमिकल्स हैं जो इंडिया में अभी भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जो दुनिया में प्रतिबंधित है। इसको प्रतिबंधित करने में क्या परेशानी, एक सिंपल सा ऑर्डर जारी करने की आवश्यकता है। हम कौन सी भयावहता की प्रतीक्षा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आती है। जब दुनिया ने देख लिया कि वो खतरनाक है, हमको फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती है। ये कुछ हमारी जो प्रश्न, जहां तक अब, क्योंकि सरकार को व्यक्ति का नाम है, एक पूरे सिस्टम का नाम है, हम सबको अवेयर होना होगा, सबको जागरूक होना होगा, इस तरह की कदम हमको उठाने होंगे। दूसरी चीज, जब आदमी बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में दवाई भी कहां से खाएंगे। मैं कोई एलोपैथिक का विरोधी नहीं हूं। यदि लाइफ सेविंग के लिए, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए एलोपैथिक से बेहतर दूसरी पद्धति अभी भी हमारे पास नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी हमारी व्यवस्थाएं बहुत हमको कुछ करने की आवश्यकता है। तो हमने पहले तो केमिकल खेत में डाला, और हमारे यहाँ सिर्फ इस वजह से भी बहुत सारे हमारे किसान भाई कैंसर और भयानक रोगियों से पीड़ित हैं, क्योंकि उनको खेतों में केमिकल डालने के प्रशिक्षण भी सही ढंग से नहीं है। वो मुख को मास्क नहीं लगाते, हाथों में ग्लोव्स नहीं पहनते हैं, सावधानी से उसको मिक्स नहीं करते हैं, कितना की घोलना चाहिए। इस कारण से भी यदि इतनी ही ट्रेनिंग दिया जाए तो भी हम हजारों लोगों को अकाल मौत के शिकार होने से रोक सकते हैं। यह हिंदुस्तान की वास्तविक स्थिति है। जो केमिकल खा करके, केमिकल खेत में डाला, डालने वाला पहले मरा, फिर वो घरों में पहुंचा, खाने वाला बाद में मरा, उसके बाद में जो बचा उसके लिए कहां गया, एलोपैथिक दवाई के शरण में गया, फिर गोली खा करके कुछ वहां मरा, बचा कौन। तो इसका एक ही उपाय है कि हम स्टार्टिंग में ही स्टॉप करें, उसको खेत में डालने से रोकें, क्योंकि वहां से जितनी कमाई हो रही है, क्षमा करिएगा, और सब्सिडी भी, मजेदार बात तो यह है, वो केमिकल वालों को ही मिलता है। हम कितना भी बायो कल्चर बना ले, बायो कंपोस्ट बना ले, कितने भी हम गाय भैंस पालें, उसके गोबर वालों को कोई सब्सिडी नहीं। अभी हालांकि इस सरकार ने थोड़ा सा प्रयास किया है, मैंने माननीय मंत्रीगणों को कई बार कहा है, पर होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी 70 सालों से नहीं है, कुछ काम 5 साल में, कुछ अगले 5 साल में होगा, पर होना जल्दी चाहिए। कि जितना हम लेट कर रहे हैं तो सब्सिडी भी वही, आपको शायद जानकारी के लिए, मेरे पास आंकड़े भाई साहब सही तो नहीं है, पर मोटे मोटे 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी में चला जाता है। इतनी बड़ी सब्सिडी, और वो केमिकल तो इतना तो सब्सिडी वाले खा गए, और बाकी फिर जो है सब्सिडी किसानों को नहीं मिलती है, वो बनाने वालों को मिलती है। और उसके बाद में वो बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल वाले कितना ले गए वो भी तो जोड़ा जाएगा। और जो परिवार उजड़ने से इस देश की हानि हुई, एक बेचारा बच्चा, बहुत अच्छे मेरे पास बच्चे, जवान लड़के लड़कियां, जो अच्छा डॉक्टर बन गया, उसी को कैंसर हो गया, पढ़ रहा, उसकी बेचारे की किडनी खराब है। इस तरह के जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़े धरोहर हो सकते थे, वो अकाल में जा रहे हैं। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहती ना, मुझे प्रकृति दिखाई देती है और मुझे स्वस्थ और समृद्ध देश दिखाई देता है। ये इसके लिए इसकी जरूरत है। ये सारी समस्याएं हैं। समस्या के लिए कौन कारण था, कहां था, क्या था, मैं एक एक चीज को थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इसको रोकने के लिए यदि हमने वहां से स्टॉप कर दिया तो ये सारी जो श्रृंखला में जो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है वो सब कुछ अपने आप खत्म होने लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। अभी हम लोग बात करते हैं एक तरह से जो भी चीजें हो रही हैं, सबसे पहले जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह या कंपोस्ट वगैरह है, उनको हमको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं शहरों में जो रहते हैं, अभी मैंने इस अभियान को शुरू किया है कि कम से कम किसी न किसी का जड़ गांव में तो ही है जुड़ा हुआ,
तुम्हारे पास पॉकेट में थोड़ा पैसा है तो उस गांव वाले को बोले भाई तो बिना केमिकल डाल करके खाद गोबर वगैरह से सामान उगा ले, जो बाजार में जितने में मिलता मैं तेरे से थोड़ा फालतू में खरीद लूंगा, उससे उसका जीवन भी निर्वहन हो जाएगा, तुम्हारा परिवार का जीवन भी बचेगा। सबसे पहला मंत्र तो ये है। इसमें सरकार की कोई नीति पॉलिसी नहीं चाहिए, ये कर सकते हैं। जैसे आप लोग बच्चे हो जो कई तो गांव से भी हो सकते हैं, कईयों के पृष्ठभूमि में तो अपने मम्मी पापा को भी आप कह सकते हैं, बड़े बाकी लोग अपने आप कर करके कि उन गांवों से जुड़े। इस बहाने से क्या होगा कि गांव वालों का एक आपका सहयोग चला जाएगा। आप कोई उसको कृपा नहीं कर रहे हैं, आप दान नहीं दे रहे हैं, अपने जीवन की रक्षा के लिए उसके जीवन को थोड़ा सा उठाने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अभी कुछ काम शुरू किया है, मैं प्रेरित भी कर रहा हूं। तो यदि हम ये अभियान जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं वो आ जाता है ना, मान लीजिए हरिद्वार की सब्जी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से सब्जी दिल्ली में बिकने के लिए आती है, तो यदि आप थोड़ा सा जोड़ें, 2-4-10 घर हो जाएं तो गाँव से सब्जी तो वहाँ आपके घर तक पहुँच सकती है, क्योंकि आजकल साधन ज़्यादा हैं। तो उन साधनों का लाभ इस तरह से जीवन बचाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। एक तो उपाय मुझे ये दिखाई देता है कि जितने भी हमारे शहर हैं, महानगर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उन सब जगह पर हम इस तरह से गांव से हम जुड़ सकते हैं और उससे केमिकल से मुक्ति का एक बड़ा रास्ता। क्योंकि किसान के लिए आज भी बड़ी समस्या ये है कि हम कहते हैं बहुत बड़ा मार्केट है, हम ऑर्गेनिक फूड की मार्केट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी करते हैं। क्षमा करिएगा, वो गिने चुने हाथों में वो सब कुछ लगभग आ चुका है। किसान यदि उगा लेगा ऑर्गेनिक, वो उगाते हैं, फिर वो हमारे पास आके कहते हैं आचार्य जी देखो हमने इतना उगा लिया था, इतना गेहूँ रखा है, इतना वो रखा है, कोई लेने वाला नहीं है। और हमारे लिए समस्या ये है कि हम एक एक ग्राहक कहाँ ढूंढें। तो यदि आप सीधे सीधे जुड़ जाते हैं तो उसको मार्केट नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने जीवन रक्षा के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह का कोई अभियान यदि हम देश में चलाते हैं तो एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। दूसरी बात, अभी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है बायो कंपोस्ट के ऊपर, बायो कल्चर के ऊपर, बायो मिनरल्स के ऊपर। ये भी मैं जानकारी के लिए, जो FCO का गाइडलाइन है, तो FCO का गाइडलाइन में वो 85 का गाइडलाइन है, ये भी हमको भी सुधारने की जरूरत है। तो उसमें ठीक है, मिनिमम इतना कार्बन, इतना ये होने चाहिए, ऐसा हमने एक छोटा सा गाइडलाइन बनाया हुआ है भारत सरकार की तरफ से।